ناظم صاحب جو ہیں وہ بچی کے والد ہیں، مجھے یقین کریں بہت دکھ ہو رہا ہے. میں بہت شرمندگی کے ساتھ سوالات کروں گی کہ ایک باپ سے جب آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو قتل کیسے کیا، کس نے کیا، کیوں کیا، بہت دکھ کے ساتھ یہ سوال کروں گی آج کے کہ کس طرح ایک باپ رو رہا ہے. اور یہ جو بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بچی کے عائشہ کے دادا ہیں. جب بزرگوں کی آنکھوں سے سفید داڑیوں کے ساتھ آنسو گرتے ہیں نا، یقین مانے قیامت ہے. ناظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ حوصلہ دے، اور اس مشکل وقت سے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں اس میں سے گزرنے کی ثابت قدمی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. ناظم صاحب کیا بنا مجھے ذرا بتائیں، عائشہ کی کتنی عمر ہے؟ عائشہ کی 16 سال عمر ہے. ناظم صاحب اتنی جلدی شادی کیوں کر دی بچی کی؟ بس ادھر میری طرف دیکھیں، میں آپ کی بیٹی ہوں. ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اپنی بچوں کا فرض ادا کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں نے جو بچی کا اپنا فرض ادا کیا تھا، میں نے سوچا بھئی زندگی کا کیا پتہ ہے، اپنے جو میری زندگی ہے اس کے اندر جو اپنے بچوں کے. بچے ہیں؟ جی میرے پاس 6 بچے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں میرے پاس، جن میں سے عائشہ اللہ کے پاس چلے گئی تو اب 2 رہ گئی؟ 2 رہ گئی ہیں. اچھا، اور سب سے بڑا بچہ ہے بچی ہے؟ سب سے بڑی بچی ہے جی. کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی 20 سال. وہ بھی شادی شدہ ہے؟ جی وہ بھی شادی شدہ ہے. اچھا. عائشہ اسکول جاتی تھی، پڑھی ہے؟ جی 7 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے. سپارہ پڑھی ہے؟ جی سپارہ بھی، قرآن مجید پڑھی ہوئی ہے، نماز پڑھتی تھی. ماشاءاللہ. عائشہ کی جب شادی کیا ہے ناظم صاحب تو عائشہ ایگری تھی شادی کے لیے؟ جی ایگری تھی. پہلے اس سے پوچھا سب نے تو پھر شادی کی ہے. ناظم صاحب کیا بنی شادی کی؟ میں نے سنا کچھ شرائط رکھی گئی تھی، کیا مسئلہ کیا تھا؟ جی جب وہ میرے پاس رشتہ لینے آئے تھے نا، میں نے ان کو بولا تھا بھی میں اپنی بچی تب دوں گا آپ کو، کیونکہ یہ پہلے شادی شدہ تھا. تو اس کی بیگم، جی میرا داماد جو ہے پہلے شادی شدہ تھا. میں نے ان کو بولا تھا میں نے کچھ شرطیں رکھنی ہیں، وہ بھی اپنی بچی کے تحفظ کے لیے. وہ کہنے لگے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، رکھ لیں جو مرضی رکھ لیں. میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے. جب یہاں پہ آئے 20 بندے آئے ہیں نکاح کرنے کے لیے، تو میں نے یہاں پہ نکاح نامے پہ جو ہے نا 5 مرلے کا پلاٹ جو وہ کہتا ہے ابھی میرے پاس ہے سہیوال شہر کے اندر. آپ نے دیکھا، تصدیق کی ہے کہ جی نہیں؟ میرا بچہ گیا تھا، جو عائشہ کا بھائی ہے نا وہ گیا تھا دیکھنے کے لیے. وہ پلاٹ آپ کے داماد کے نام ہے؟ جی وہ کہتا تھا. آپ نے چیک کیا؟ جی پلاٹ ہم نے دیکھا موقع پہ جا کے. یہ پتا کیا کہ داماد کے نام بھی ہے یا کسی کا پلاٹ دکھا دیا؟ نہیں یہ نہیں چیک کیا. نہیں یہ نہیں چیک کیا. اچھا چلیں، کمزور حرکت ہے آپ کی، غلط بات ہے یہ، آپ کو چیک کرنا ہی نہیں آیا. یا تو آپ چیک کرتے نا پراپر طرح سے، جس نے جو کہہ دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا چلیں خیر، غلطی ہو جاتی انسان سے. پھر پلاٹ کی بات کلیئر ہو گئی، اور کیا لکھوایا تھا نکاح نامے پہ؟ جو ناراضگی کی صورت میں، یعنی کہ یہ میری بچی کو طلاق دے گا تو 5 لاکھ روپے دے گا. اچھا جی. اور اگر رسا کے بٹھائے گا ہمیں ہمارے پاس بھیجے گا تو 10,000 روپے مہانہ دے گا. ٹھیک ہے. اور جو سامان جہیز میں نے بچی کو دیا تھا وہ بچی کی ملکیت کر دی تھی. ٹھیک ہے. یہ شرطیں جو ہیں وہ میں نے نکاح نامے پہ لکھوائی تھی. ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصہ تو بچی کے ساتھ وہ خوش رہے ہیں. اچھا جی. اس کی بیگم بھی اور وہ بھی. پہلی بیوی نکاح میں آئی تھی؟ جی آئی تھی. 20 بندوں کے ساتھ آئی تھی؟ جی آئی تھی. ٹھیک لگ رہی تھی؟ ٹھیک لگ رہی تھی. جی اس نے اپنا اجازت نامہ بھی مجھے دیا تھا جو میں نے یونین کونسل میں درج کرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو میرا داماد ہے نا شاہد، جو قاتل ہے، اس نے اپنے سالے کو فون کیا بھئی خالو کو بولو بھئی یہ شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں تو یہ ختم کر دو. اس کے سالے نے مجھے بولا بھئی پاپا ایسے ایسے کر کے بھائی نے فون کیا ہے مجھے. میں نے اس کو بولا بیٹا یہ ہمارے بڑوں کے کام ہیں، آپ اس کو بولو پاپا سے بات کر لیں. اس نے مجھے تو نہیں کال کی اور عائشہ کی امی کو کال کر دی بھی خالہ ایسے ایسے کر کے خالو کو بولو یہ چیزیں ختم کر دیں. انہوں نے میرے ساتھ بات کی. میں نے ان کو بولا یہ آپ کا کام نہیں ہے،
जो रिश्ता करवाने वाला है ना उसका वो बहनोई और इसकी बहन। कारी किसका था? हाँ जी, कारी साहब किसके थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया? जी हमारे थे। आपके थे। निकाह नामा आपके पास है? जी है। रजिस्टर्ड कराया था? जी कराया था। करवाया था? जी। ठीक है, आगे? तो मैं जिसने निकाह करो वो जो रिश्ता लेने आए थे ना मेरे पास, मैं उसके पास गया हूँ। मैंने उसको बोला मैं ऐसे इस करके जो ना आपका भाई ये हरकतें कर रहा है और आयशा को भी कह रहा है। आयशा को क्या कहता है? आयशा को कहता था भाई मुझे इस्टाम करके दे दो या माफ़ कर दो। अच्छा। ये जो शर्तें हैं वरना मैं आपको खुश नहीं रखूँगा। आयशा ने मुझे बताया है। तो मैंने उसको बोला बेटा मैं इनको ना समझाता हूँ। मैं उसके पास गया हूँ जिसने ये रिश्ता करवाया था, उसकी बहन और इसका बहनोई शाहिद का। मैंने उससे बात की है। यहाँ से कितनी दूर है उनका घर? यहाँ से 20 किलोमीटर है। ठीक है, हुसैन शाह में ही है? नहीं जी, साहिवाल में है। साहिवाल में, ठीक है। फिर तो वो मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने उनसे बात किया, वो कहता अब नहीं करेगा। लेकिन वो उन्होंने मेरे साथ नहीं फिर बात की और आयशा को टार्चर करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे क्या टार्चर किया? यानी कि आयशा को मारता था, उसको पीटता था, उसके साथ गलत रवैया करता था। तो एक दो दफ़ा उसने मुझे भी बताया है। आयशा ने हम वहाँ पे चले गए, आयशा की अम्मी और मैं और आयशा का भाई। अच्छा। हम वहाँ पे जाके हमने उनको समझाया है। हमने कहा है बेटा ऐसे नहीं करो, हमने आपसे कुछ लेना तो नहीं है, ये बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखाया है। हमें तो एक चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें तो आप ऐसे नहीं करो। आपने जिस मकसद के लिए शादी की है ना, अल्लाह पाक आपको आस उम्मीद लगा दे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे कहने लगा सॉरी खालू अब नहीं करूँगा, लेकिन वो अपनी हरकतों से नहीं हटा। ये क्या करता था आपका दामाद? ये मुझे तो बताया इसने भाई, एक है गल्ला मंडी में ना चाचा नज़ीर, उसके साथ इसका शेर है और 1 एकड़ रकबा है इसका, जो इसकी अम्मी के नाम था वो इसको दे के गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए नाजिम साहब के ये शादी कितना अरसा रही? ये शादी तकरीबन 8 माह रही है। जून में शादी हुई थी। सॉरी, जून में 2024। 8 माह की शादी रही। इस 8 माह में सुख का सांस कितने दिन रहा आयशा के लिए? तकरीबन 5 माह। 5 माह ठीक रहा जी? 5 माह कुटाई नहीं थी, सब ठीक था? बिल्कुल ठीक था। और 5 माह तक ये भी नहीं कहता था कि खत्म करो, स्टाम्प पेपर पे लिखो शराइत को? नहीं, ये कहता था। शुरू हो गया था? जी, ये कहता था। मारपीट सिर्फ शौहर करता था या और भी कोई करता था? उसकी वाइफ भी करती थी, पहली बीवी जी, सौतन जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि घर पे सास ससुर थे, वो मना नहीं करते थे? नहीं थे। बहू को नहीं मारो? नहीं थे, उसके वालिदैन फौत हुए हुए हैं। घर पे कोई नहीं था? और घर पे और आपका दामाद, सौतन और आयशा? आपका 3 लोग होते थे। आपने जरा सी बच्ची उठा के सौतन को दे दी है उसी घर में, और मारपीट भी हो रही है। मोबाइल था बच्ची के पास? जी नहीं था। कैसे राब्ता होता था? उसके नंबर से होता था, शाहिद के जो। तो शाहिद के नंबर से वो कैसे आपको बताती थी कि मार पड़ रही है मुझे? वो मुझे बताती नहीं थी। जब कभी आती थी ना इधर मिलने के लिए, वो अम्मी को बात करके जाती थी। कितने से बाद मिलने आती थी? तकरीबन 1 माह के बाद, 1.5 माह के बाद। शौहर के साथ आती थी? और साथ ही चल जाती? जी, साथ ही चली जाती थी। बैठने का मौका मिलता था कोई? नहीं, इतना नहीं मिलता था, बस थोड़ा सा मिलता था। 2 घंटे के लिए बैठते थे। अल्लाह की तरफ से जिस मकसद के लिए ये निकाह किया गया था उसमें कोई कामयाबी हुई थी, कोई उम्मीद लगी थी? जी हमें नहीं पता, बच्ची ने हमें नहीं बताया। नहीं बताया जी। अच्छा, आपको आपके दामाद ने कॉल की थी जब आयशा इस दुनिया में नहीं रही? जी की थी। क्या कहा था? उसने मुझे बोला है अफ्तारी होने से 5 मिनट पहले, मैं सियालकोट में काम कर रहा था, सीलिंग का काम करता हूँ मैं। ठीक है जी। उसने मुझे बोला है खालू आपकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है। मैंने उसको बोला है, मैं कहा बेटा कैसे किया है उसने? अच्छा जी। मैंने उसको बोला कैसे किया, दरक लगाया है या जहर खा लिया है, क्या किया उसने? कहते हैं मुझे कह रहा है भाई उसने फांसी दे ली है रस्सी पे लटक के। मैं कहा कहाँ पे लिया है? कह रहा है ऊपर वाला कमरा है ना जहाँ पे बेड पड़ा है, उसमें गार्डर में रस्सी डाल के ना। आगे? तो मैंने बोला फिर बेटा अल्लाह की रज़ा, मुझे तो नहीं पता। मैंने फिर फ़ोन किया, अपने ये छोटे भाई इधर रहते हैं, ये मेरे वालिद साहब रहते हैं, जो मेरी बड़ी बच्ची रहती है फ़रूका में, साथ ही सहीवाल के साथ। मैंने इन पे सबको फ़ोन किया। मैंने कहा आयशा ने ऐसे ऐसे करके मुझे कॉल आई है, तो आप लोग जाओ वहाँ की लोकेशन लो, क्या सूरत हाल है। क्यों नहीं गए?
मैं सियालकोट रहता था, मेरी अच्छा, पहुंचने में टाइम लगना था। हाँ, मैं पहुंचने में टाइम लगना था। अच्छा, मुझे बताएं, जब जाके देखा तो क्या देखा? आयशा कहाँ पड़ी थी? ऐशा नीचे वाली मंजिल पे पड़ी थी। ग्राउंड फ्लोर पे, जमीन पे? नहीं जी, हाँ। चारपाई पे। चारपाई पे, मतलब जैसे हम हैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं ना? जी जी। अच्छा, वहाँ पे चारपाई के ऊपर लिटाई हुई थी? जी, लिटाई ऊपर हुई थी। कपड़ा वगैरह दिया था? जी अच्छा, कैसे पता चला कि ये खुदकुशी नहीं कुछ और है? जी, उसकी जो गर्दन है ना, यहाँ पे सिर्फ हाँ। यहीं पे निशान है, अच्छा, इससे आगे निशान नहीं है, इधर पीछे नहीं है और कहीं पे निशान नहीं है, और सिर्फ बॉडी ये पे जगह कोई पे। नीले निशानात, कोई नील, ये वो, ये कुछ था? ये थोड़ा बहुत था, यहाँ पे था, हाथों पे था थोड़ा सा नील, और इस गोडों पे था थोड़ा सा नील। ये ठीक है, ठीक है। और फिर जब ये मेरे भाई पहुंचे हैं वहाँ पे, मेरे रिश्तेदार, मेरी बच्ची ने पहुंचे हैं, उससे पहले पुलिस पहुंच गई थी मौके पे। अच्छा, 15 पे मोहल्ले वालों ने कॉल की है, उसने नहीं कॉल की। ठीक है। फिर? तो मुझे कॉल करके कहता है, मैंने उसके पूछा, मैं कहा बेटा ये खुदकुशी जो की है ऊपर वाले कमरे में, हाँ। तो उसने क्या किया है? मुझे कहता है इसने दरवाज़ा बंद किया हुआ था हाँ। और बारी भी बंद की हुई थी। मैंने दरवाज़ा तोड़ के वो आपने बाहर दरवाजे को निकाली। देखा टूटा है कि नहीं? नहीं टूटा हुआ, बिल्कुल टूटा हुआ था? नहीं चेक टूटा किया हुआ, था? चेक किया हुआ, मेरे पास तस्वीरें भी पहला हैं झूठ। दरवाजे अच्छा, की। और? कहता है बारी तोड़ के मैंने निकाला है। अच्छा, बारी टूटी थी? बारी भी नहीं टूटी, तफ्तीश ओके, भी गया, और? पुलिस भी गई है वहाँ और? पे। मुझे कहता है मैं आपकी बेटों को आपके पास छोड़ने के लिए बोला था, वो इस वजह से खुदकुशी कर गई है। डरा हुआ था या नहीं? नहीं डरा हुआ था। सौतन क्या कर रही थी? सौतन ऊपर बैठी हुई थी। बैठी हुई थी? जी, आप लाश लोगों के लाश के पास कोई उनका बंदा नहीं था, अकेली रखी हुई थी? अकेली पड़ी थी। हम जब पहुंचे हैं, हमारे वारसीन लाश के पास जाके बैठे हैं, उनका कोई आदमी लाश के पास नहीं था। और मोहल्ले वाले तो ये कहते हैं भाई इसने मुझे कह दिया था उनके आने से पहले पहले जो कफन दफना है ना वो कर देते हैं, कब्र निकालो, इसको दफन कर देंगे। मुलजिम आपका पुलिस ने पकड़ा है? जी, पकड़ा हुआ है। पुलिस से कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई तहफुजात हैं आपको? नहीं है थाने वाले बात सुनते हैं? जी, थाने वाले नहीं मेरी बात सुन रहे। क्या मसला क्या है, बताइए। जी आप क्या चाहते हैं, या आपका क्या मुतालिबा है? जी, मेरा मुतालबा है, मेरी बच्ची ने, इन लोगों ने मेरी बच्ची को कत्ल किया है, ठीक फांसी है। दी है, ठीक है। लेकिन थाने वाले जो है उसको खुदकुशी वाली साइड पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे लगता है कि उसको खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं? जी, उन्होंने पैसे ले लिए, हमारी बात ही नहीं सुनते। हम ठीक जाते है। हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको चारपाई पे बैठाते हैं। अपनी आंखों से देखा? जी, आंखों से देखा है किनको हमने। प्रोटोकॉल दिया जाता है? जी, उनको चारपाई पे बैठाते हैं, हमें बाहर किसको? खड़े कर देते। किसको? मुलजिम को पुलिस के पास है? मुलजिम को। जी मुलजिम को बिठाते हैं चारपाई जी, पे? चारपाई पे मुलजिम को बैठाते हैं।